नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत ही खास कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए। जी हाँ, इस वक्त दूरदर्शन से निर्मित होने वाला कार्यक्रम सीरियल सीरीज रजनी 2.0 के लॉन्च पे हम इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम देखने जा रहे हैं कि स्टेज पर क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या गतिविधियां होने वाली हैं। हमने सुना है कि काफ़ी सारे दिग्गज अभिनेता शिरकत करने जा रहे हैं। क्या क्या स्टार कास्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं स्टेज की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। स्टे ट्यून्ड। Early 80s we saw, in 1980s was the show first. Rajni first part was there. So when we watch these old serials, we think of just one particular generation. But cut to Gen Z, how do you really make them glued to these series now? The attention span, it's going on. ADHD is the top thing that's happening. How do you really make them glued to it? See, at this point of time, I think that audiences are not really tied down to a single kind of format. On the one hand, you have epic shows which are going on for hundreds of episodes, and at the other end of the spectrum, you are seeing micro dramas coming in with 1 minute and 2 minute episodes, or even smaller durations. So it's a matter of the right manner of storytelling, identifying a good subject and presenting it crisply and succinctly. And this is an effort to go ahead with a well-known property of Rajni as a brand name in itself, and yet at the same time to bring in the younger generation, which is often the most socially active. And to make them realize that this social consciousness, that's this social activism, is not something that has started happening in the last 2-3 years. 40 years back, Doordarshan was showing this, and it's just continuing a legacy. And I'm sure it's not only the older people who have seen the original serial, but even the younger generation would see this serial and identify with it and appreciate it. Lovely. So what do you have to say to our viewers of Doordarshan especially? Doordarshan has always been a part of your lives, and we hope to continue and deepen this relationship over the days to come. For those of you who are linear TV watchers, of course, you have all our Doordarshan channels to watch. And in addition, if you miss any of our shows, then please download Waves OTT and watch these programs at a time of your convenience. So whether you want to watch on the big screen or on your mobile, either which way, Doordarshan, Prasar Bharati and Waves will continue to be a part of your lives. So one last question. How do you really call other people who want to really join? We have been listening about Waves OTT and stuff, but not really people are on the ground reality. If we see, still there are people who are not aware of it. So a shout out to them. Well, we are continuously doing branding and marketing activities. And as you are well aware that the OTT market in India is a fairly crowded space. We have more than 80 OTTs that are already functional in India, which are very sharply targeted at different segments of the audiences. Waves, on the other hand, being a public service broadcast initiative, means that it has to reach out to every single person in the audience, not only in India and abroad. And which means that the range of content here would be much wider, much broader, and it naturally takes some time and effort before we are able to reach out to every last person in the audience. The effort is on, and we look forward to welcoming everybody on Waves. Thank you so much for giving your time, sir. Thank you.
In conversation with me was Mr. Gaurav Dwivedi, CEO प्रसार भारती। हम बात कर रहे थे रजनी 2.0 की, जो जल्द ही अपने नए रूप में आ रहा है, जिसकी बातें हम 1980s में करते थे, देखते हुए बड़े हुए। Something to look forward. Let's see what does Rajni 2.0 bring to us. मेरे हिसाब से महाभारत, रामायण और रजनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से डिफरेंट जॉनर वैसे ही थे, और वो भक्ति भाव से देखते थे, ये इस भाव से देखते थे कि देखते हैं रजनी इस बार किसकी ऐसी तैसी करने वाली है। एंड बिकॉज बासुदा वाज इन्वॉल्वड इन इट, सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रियलिज्म इन इट। ऐसा बिलीवेबल लगता था। टीवी का शो नहीं लगता था। टीवी का शो जो होते हैं अभी के मीम्स बनते हैं कि कैसे, उसमें एक द डिस्कवरी ऑफ प्रिया तेंदुलकर वाज अमेजिंग। सारांश अगर वो संजीव कुमार करते वो रोल, तो इतने महान कलाकार थे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट बिकॉज आई वाज अ नोबडी इट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। एंड फिर दूरदर्शन किसी को खोज के निकाले और कहे कि आप ये शो करो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। So I think the one thing that really endeared me and got me very excited about doing this was that it's coming on DD. It kind of feels like a full circle. My growing up years were all about DD. We were allowed to watch precisely 30 minutes of television a day when me and my sister were growing up, and from Malgudi days to Bunyad, I think Tamas, Rajni. There are just so many epic shows that actually happened on DD, and it's almost bittersweet somewhere, because I feel that barrage of amazing shows that defined the television of this country, over the years kind of faded away, and today I think with the initiative that the team at Doordarshan, obviously led by Gaurav sir and everyone, is taking to actually bring back Rajni again, so I think it's a great initiative, because there are people of I think my age group who grew up watching these shows, and I feel like the essence of these shows was so true to what our country is all about, because it was made for the heartland, and that's exactly what Rajni 2.0 is here to do. So really hats off to everyone who's been, I think, instrumental in making this come alive, and like Anupam uncle rightfully said, it's tall shoes for Aradhana to fill in, with everything that has been done with Rajni in the past. But you have to believe in yourself, put your foot forward, and make it happen. So I'm really thankful that I'm a part of this, and I could in some way drive some narrative of my father ahead. Though in no ways could I fit in his shoes, and I'd rather just stand besides. Thank you, everyone. इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ हैं श्री करण राजदान, जो कि बताने जा रहे हैं, बहुत ही खास गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं एक खास सेलिब्रेशन के लिए। रजनी 2.0 क्या है जानेंगे हम करण सर से। बहुत बहुत स्वागत आपका सर दूरदर्शन पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और रजनी 2.0 शुरू हो चुका है दूरदर्शन पर। वेव्स OTT पर भी उसके 20 एपिसोड्स हैं। बहुत जल्द प्लीज़ वेव्स OTT का ऐप डाउनलोड करिए और देखिए, ये फ्री है फ़िलहाल, तो उसका फ़ायदा उठाइए और रजनी 2.0 उस पर देखिए, वेव्स OTT पर। सर, जब भी हम बात करते हैं कोई कल सीरियल की, जब ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि आजकल की जनरेशन को ग्लूड करना, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बहुत स्लो होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, तो एक्चुअली उनको खींचना यंगर जनरेशन को, बिकॉज हम बात करें 1980 से लेके कट टू 2025 की। सर, योर थॉट्स। मुद्दे तो नए हैं ना, मुद्दे तो यंग जनरेशन के ही हैं कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, किस तरह सोना अगर आप खरीदने जाएं, आई मीन एवरी गर्ल, आई थिंक इन एवरी जनरेशन, वो सोना तो चाहती है, तो फिर ये जो है उसे हॉलमार्क का किस तरह एम्बलम देखना चाहिए, मार्क देखना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। क्या डाउरी मांगना ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, अभी कुछ लोग डाउरी मांगते हैं, तो उस बात को लेकर यंग जनरेशन इन्वॉल्व है। मुझसे कितनी सारी यंग जनरेशन की लड़कियां कहती हैं कि उनके मॉम डैड से डाउरी मांगी गई। सो जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब आज के वक्त के हैं, इस जनरेशन के हैं।
सर बात कर रहे थे सीईओ साहब की जब श्री गौरव द्विवेदी जी से आप बात कर रहे थे एंड यू मेंशन कि कैसे उन्होंने आपको ढूंढ निकाला। सो उसकी वो कहानी सुनकर हमें बहुत मज़ा आया। सर जब ऐसी बात आती है कि आप रिकनेक्ट करते हैं उस दौर को जो आप छोड़ आए बहुत पहले, योर थॉट्स? हाँ, ये कमाल की बात है कि गौरव जी मुझे ढूंढ रहे थे और मैं तैयार था रजनी 2.0 के साथ, और मैं चाहता था कि रजनी 2.0 दूरदर्शन नेशनल पर आए जिस तरह पहले आया था। और इस बार एडवांटेज ये था कि वेव्स ओटीटी भी था, तो मुझे लगा कि चैनल तो बिल्कुल सही है और ये देश का पहला चैनल, अपना चैनल। सो दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो कि गौरव जी मुझे ढूंढ रहे थे। लवली सर, बहुत बहुत मुबारकबाद एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू सर। जाते जाते दूरदर्शन के व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर कहिएगा, और आपकी स्टारकास्ट को भी ढेर सारी मुबारकबाद हमारी तरफ से। मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि जो प्यार आपने 30-35 साल पहले दिया था रजनी को, वही प्यार आज भी दीजिएगा, क्योंकि ये वही सीरियल है, वही शो है जिसको आपने सराहा था, सराखों पे रखा था और एक आइकॉनिक शो बनाया था। मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। इस वक्त मेरे साथ है बहुत ही यंग एंड बबली आराधना, जो कि एक लीड रोल करने जा रही हैं रजनी 2.0 में, जिसके निर्माता हैं दूरदर्शन, जो कि आने वाला है डीडी पर एंड ऑफ कोर्स वेव्स ओटीटी पर। आराधना, बहुत सारी बातें आपके साथ करनी तो बनती है इस वक्त। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, ढेर सारी कंग्रेचुलेशंस। बहुत 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 शुक्रिया। आराधना 2.0 की हम बात करते हैं। कोई भी सीजन का जब एक बार पहले, जब 1980s, आई डोंट नो इफ यू वर बोर्न आल्सो ऑल द टाइम नाउ, आई डोंट नो, योर पेरेंट्स मस्ट हैव वॉच्ड, लेकिन जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, आई हर्ड यू नो एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड। व्हाट स्पेशल वर्ड्स यू हैव टू से फॉर आवर व्यूअर्स? आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, जितना प्यार आप लोगों ने रजनी पहले जो हमारी प्रिया मैम है उनको दिया है, ऑब्वियसली वो 80s 90s की बात थी, 1985, और आज के ज़माने में जो बच्चे, जैसे जो हम उम्र है, जो मेरी उम्र के, या फिर या आज के जो नौजवान हैं, उनको शायद नहीं पता होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी उन सबको, और हमारे जो 80s 90s के जो प्यारे प्यारे लोग हैं उनको कहना चाहूँगी, प्लीज़ दोबारा देखिए, एजुकेट करिए आजकल के बच्चों को कि इट वॉज अ कल्ट शो, और ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें हमें सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सवाल पूछना सिखाता है कि आपको अंधभक्त बन के अंधाधुन कुछ नहीं करना है। आप सवाल पूछिए, हिम्मत रखिए, और साथ ही साथ कंपैशन ज़रूर रखिए। आई थिंक बहुत ज़रूरत है आज के वक्त में, हिम्मत और कंपैशन, ये दो चीज़ मुझे लगता है। थैंक यू सो मच राधा। एक और सवाल जो मुझे लगता है जाते जाते ज़रूर बनता है कि ये आपको चुना गया होगा बहुत सारे फेसेस में, तो वो ऑडिशन का राउंड रहा होगा, उस वक्त क्या चलता था आपके माइंड में? मैं सच बात बताती हूँ, ये एक छोटी सी कहानी है जो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। तो इससे पहले करण सर की एक और मूवी आई थी, सायरा खान केस, उसमें मैंने लॉयर का किरदार निभाया। उसी दौरान जो श्रद्धा मैम और सोहन सर है, जो श्रद्धा सोहन कास्टिंग टीम है, उन्होंने बोला बेटा एक ऑडिशन है, ऐसे जल्दी से दे दो। और उस दौरान वो मैंने दिया था शायद सायरा खान केस के पहले ही, ऑडिशन के पहले ही। तो वो मैंने कम से कम मतलब 8-9 महीने पहले ही ऑडिशन दे दिया था, आई स्वेयर। और बीच में जब मूवी शूट हो गई सायरा खान केस, वो रिलीज़ भी हो गई, तब सोहन सर और श्रद्धा मैम ने करण सर को दिखाया कि ये ऑडिशन कैसा लग रहा है, ऐसा मुझे बताएगा कि उनका रिएक्शन क्या था। करण सर ने बोला कि यार ये तो बढ़िया, कौन है? तो सब बोलते ये तो अपनी गौरी है, यही तो सायरा खान में लॉयर बनी थी। तो इवन सर डिडंट रिमेंबर दैट, यू नो, कि उनको भी पता नहीं था। और डेफिनेटली मुझे पता चला कि बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्रियाँ इनके लिए चूज़ की गई थी इस रोल के लिए। और मुझे जैसे सुनने में आया कि इस रोल के लिए काफ़ी लोगों ने मेरे लिए लड़ाइयाँ की है, काफ़ी लोगों ने कहा कि आराधना को लो। सो उनमें से एक है श्रद्धा मैम, सोहन सर, उनमें से एक है आरती मैम, उनमें से है स्वाति मैम, ऑब्वियसली करण सर। तो आई थिंक इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, तो उन्होंने कहा एक मौका दे के देखते हैं इसको। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। मेरे साथ है श्री राजू सिंह जी, जिन्होंने संगीत दिया है रजनी 2.0 का। याद करेंगे उनसे कि क्या क्या चला इस सब के पीछे, बिहाइंड द कैमरास, कैसा रहा इसका म्यूजिक, और उनको हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे अपनी कहानी शेयर करने के लिए, छोटी सी कहानी। सर, ओवर टू यू। हेलो एवरीबॉडी, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे गॉड ने मुझे हमेशा, ऊपर वाले ने ब्लेस किया है विद ऑल द बेस्ट ऑफ द शोज,
Rajni is one of them. Obviously, everybody knows about Rajni. तो I'm very happy कि रजनी के 2.0 के साथ में मैं connected हूँ और मैं रजनी पहले वाले से भी connected था musically. ये शो का जो जिस्ट है बेसिकली मैं जानता हूँ जब पहले ना हम लोग एक शो किया करते थे तहकीकात, तो वहाँ पे प्रिया जी भी आया करती थी ऐसी जस्ट टू स्पेंड टाइम. तो आई हैव नोन दैट पर्सन, दैट ह्यूमन बीइंग. तो दैट वाज अ कैरेक्टर कि जहाँ गुस्सा होना तो गुस्सा, जहाँ सॉफ्ट है सॉफ्ट, एवरीथिंग पूरा. तो दिस शो पे हमको जो गाना करना था, एक गाना ऑलरेडी सो पॉपुलर था, तो हमको जो नया गाना करना था वो ऐसे करना था कि हमें बोलना भी इस टाइम के बारे में था. तो इस बार हमारे वर्ड थे कि एक लड़की थी, उसकी बेटी का ये कहानी है, तो सब उसको 2.0 कहते हैं. सर मैंने आपको गुनगुनाते सुना और मैं चाहती हूँ कि दूरदर्शन के व्यूअर्स के लिए मैं आपको ऐसे तो जाने दूंगी नहीं. जी अगर इजाज़त हो मैं वर्ड सामने रख लूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, गलत नहीं कहूँ. बिल्कुल सर, वो ठीक. Okay, it goes something like रजनी 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 नाम की एक लड़की थी, उसकी बेटी की ये कहानी है. कॉलेज में भिड़ जाती है, सबकी बैंड बजाती है, सब उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं, सब उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं. रजनी रजनी रजनी. What a wonderful fusion. Thank you so much sir. डीडी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. All the best to you. थैंक यू वेरी मच. एंड दूरदर्शन से मेरा पुराना रिश्ता है. मेरा पहला टीवी शो वाज देख बाय देख, उससे शुरू हुआ है. आज मैं रजनी कर रहा हूँ. वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी डे फॉर मी. मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि इस वक्त एक बहुत ही खास कार्यक्रम हमने विटनेस किया. जी हाँ, स्टेज पर मौजूद थे करण राजदान. अगर मैं रजनी की फर्स्ट सीरीज़ की बात करूं तो उसके साथ तब से 1980s से वो कल्ट सीरियल से जुड़े हुए थे. और कौन कौन खास थे? वेल, हमारे प्रसार भारती के CEO श्री गौरव द्विवेदी जी खास करके इस महफिल में शामिल हुए, जिनके कारण मैंने सुना कि हम लोगों ने यही सुना कि ये चीज़ जो ये पॉसिबल हो सकी कि रजनी 2.0 दर्शकों को वापस से दिखने जा रहा है. इनके अलावा अनुपम खेर, हरमन बावेजा और काफ़ी सारे अन्य कलाकार स्टारकास्ट के साथ मंच पर मौजूद थे. जाने माने नाम डलनाज़ ईरानी. एंड इसके अलावा जो कई लोगों ने शिरकत की, उन्होंने एक बहुत ही खुशनुमा सा माहौल, एक नॉस्टैल्जिक एरा हम सभी को दिखाने के लिए मिला, क्योंकि ट्रेलर भी हमने देखा. एंड ऑफ कोर्स इतनी सारी एक्साइटमेंट के साथ बाद में केक कटिंग का भी सेलिब्रेशन हुआ. बहुत ही मज़ा आया. और आराधना को एक बार फिर से हमारी टीम जो रजनी 2.0 के लिए खास लीड हीरोइन है, उनको बहुत बहुत मुबारक. सभी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.